منورہ میری خالہ کی بہو تھی۔ وہ بہت نیک اور اچھے اخلاق کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام انور تھا۔ وہ اور اجمل بچپن کے دوست تھے۔ ایک کالج سے تعلیم مکمل کی۔ کچھ عرصہ مختلف جگہ پر کام کرنے کے بعد بالآخر ان کو سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ ان کی دوستی مثالی تھی۔ ہر جگہ ساتھ رہتے، گھر کرائے کے تھے مگر قریب قریب تھے۔ انہوں نے دیار غیر جا کر خوب کمایا، اتنا سرمایہ جمع کر لیا کہ ذاتی گھر خریدنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ پاکستان آئے تو ایک پرانی کوٹھی پسند آ گئی جو اگلے وقتوں کی مضبوط اور اچھی حالت میں تھی۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا، یہاں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں، تاہم مذکورہ رہائش گاہ کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تبھی انور بھائی اور ان کے دوست اجمل نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھی آدھی رقم ملا کر خرید لیتے ہیں۔ فی الحال ساتھ رہیں گے، جب بٹوارا کرنا ہوگا تو پوری کوٹھی لے لے گا یا پھر درمیان سے دیوار اٹھا کر مکان کو آدھا آدھا کر لیں گے۔ کوٹھی وسیع تھی اور دونوں کی فیملی مختصر تھی۔ انور بھائی کی بیوی، بوڑھی ماں اور ایک بیٹا تھا، جبکہ اجمل کی سرے سے کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ دونوں مرد ملازمت کی وجہ سے سعودی عرب رہتے تھے، ایسے میں ان کی فیملیز کا ایک ہی ساتھ رہنا بہتر تھا۔ غرض کوٹھی خرید لی گئی۔ میری بھابھی منورہ، خالہ جان کے ہمراہ اجمل کی بیوی اور والدہ اس کوٹھی میں شفٹ ہو گئے۔ اپنے اہل خانہ کو نئے گھر میں منتقل کرنے کے بعد انور اور اجمل واپس سعودی عرب چلے گئے۔ ان دنوں انور بھائی کا بیٹا کاشف 12 سال کا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تبھی سے اجمل کی بیگم سائمہ نے اسے گود لے لیا تھا۔ وہ اس بچے سے بہت پیار کرتی تھی اور یہ بھی ان سے مانوس تھا۔ اسکول سے آتے ہی ان کے گھر چلا جاتا۔ ممتا کی پیاسی سائمہ بھی کاشف کا انتظار کرتی رہتی، ٹھنڈے شربت اور اکثر کھانے سے تواضع کرتی، دیر تک اس کے پاس رہتی۔ کبھی منورہ بھابھی نے برا نہ منایا کہ یہ ممتا کی محرومی ہے، وہ سائمہ کا دل سے احترام کرتی تھی۔ سائمہ بھابھی کاشف کو خوش دیکھنے کے لیے اس کے لیے مہنگے کھلونے لاتی، اچھے اور قیمتی کپڑے بنواتی، جو فرمائش کرتا اسی وقت پوری کرتی تھی۔ اللہ نے ان کی سنی کہ رہنے کو ایک ہی گھر دے دیا۔ اب یہ بچہ ہمہ وقت ان کی نظروں کے سامنے تھا اور وہ اس کو اپنے گھر کی رونق سمجھتی تھی۔ جس روز کاشف پیدا ہوا اسی دن سے وہ اس کو اٹھاتی اور کھلاتی آئی تھی، لیکن سائمہ کی ساس اور نند کو ہرگز ان کی یہ ادا نہیں بھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ عورت بجائے روپیہ بچانے کے ہمارے بھائی کی خون پسینے کی کمائی کس طرح غیر کی اولاد پر لٹاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کر دیا کرے کہ وہ حقدار تو تھے۔ انسان کو جس کام سے خوشی اور سکھ محسوس ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ بھابھی سائمہ بھی ساس نند کی ان باتوں پر کان نہ دھرتی۔ سائمہ کی نند شادی شدہ تھی اور اس کے 4 بچے تھے۔ شوہر کی تنخواہ معمولی اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ چاہتی تھی سائمہ بجائے کاشف کی فرمائشیں پوری کرنے کے اس کے بچوں پر خرچ کیا کرے، جبکہ نند باوجگی بنتی نہ تھی۔ ساس آئے دن بیٹی کو بلاتی اور سائمہ کو نند کے اعتراض کھلتے، تبھی وہ اس کو منہ نہ لگاتی۔ ساری الجھن یہی تھی۔ جہاں تک کاشف کا مسئلہ تھا، سائمہ کہتی یہ گھر کا بچہ ہے، ایک دن کا تھا تبھی سے گود میں اٹھایا، اپنی اولاد جیسا پیارا لگتا ہے۔ ساس نند خواہ مخواہ اس معصوم سے جلتی ہیں۔ منورہ بھابھی اور سائمہ کی بہت بنتی تھی، دونوں کوٹھی میں سکون سے رہ رہی تھی۔ ان کی محبت کی وجہ سے گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی، کبھی کبھار ہی بھابھی کے ہاں جانا ہوتا، میں زیادہ تر اپنے بچوں میں مصروف رہتی۔ والدہ آ جاتی تو بتاتی کہ منورہ اور سائمہ آپس میں محبت سے رہ رہی ہیں، اللہ جانے سائمہ کی ساس کیوں دشمن بنی ہوئی ہے، کسی دن یہ دونوں گھرانوں میں جدائی ڈال کر رہے گی۔ میں امی سے کہتی اس بڑھیا کے جلنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ انور بھائی اور اجمل بھائی کی دوستی بچپن کی ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اکیلی عورتیں ہی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے سوچ سمجھ کر انہوں نے مشترکہ گھر خریدا تھا تاکہ ان کی خواتین اکیلی نہ رہیں۔ وقت گزرتا رہا، چھٹی پر دونوں حضرات وطن آتے اور کچھ دن رہ کر واپس لوٹ جاتے۔ یوں 7 سال پلک جھپکتے گزر گئے، وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ کاشف اب ماشاءاللہ 19 برس کا نوجوان ہو گیا تھا۔ اس بار جب بھائی آئے تو بھابھی نے کاشف کی شادی کا تذکرہ چھیڑا۔ انہوں نے اپنے ایک دور پرے کی رشتہ دار کی بیٹی پسند کر لی تھی، کیونکہ بیمار رہنے لگی تھی، چاہتی تھی کہ جلد از جلد بہو کو گھر لے آئیں۔ بھائی نے بھی بیوی کی رضا پر ہاں کہی اور کاشف کی منگنی لائبہ سے کر کے واپس سعودی عرب چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ پیسے کما لوں تاکہ اکلوتے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کر سکوں۔ خدا کی کرنی کہ زندگی نے مہلت نہ دی اور بھابھی منورہ کاشف کی شادی کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ ایک روز اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بھابھی کی وفات کا سبھی کو دکھ تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، سب بے بس تھے۔ منورہ بھابھی کا 40واں گزرا کہ بھائی واپس لوٹ گئے۔
बूढ़ी माँ और नौमर बेटे की देखभाल और खाने की जिम्मेदारी भाभी साइमा ने संभाल ली कि वही अब घर की सरबराह थी। खाना एक जगह पकने लगा। मुकर्रर वक्त पर खाला जान और काशिफ को भाभी साइमा खाना दे देती। मुलाजमा की भी निगरानी करती, जो सफाई करने और बर्तन धोने आती। अपनी वालदा और बेटे का खर्च अनवर भाई अजमल को दे दिया करते थे। 1 साल बाद भाई अनवर ने बेटे की शादी कर दी और बहू घर ले आए, ताकि इनकी वालदा का कोई संभालने वाला हो। बीवी ना रही तो घर में दिल ना लगा। नया मुआहिदा कर लिया कि सऊदी अरब लौट गए। अजमल अभी तक वहाँ थे। घर में बहू आ गई, मगर वो कमसिन थी। बमुश्किल 15-16 बरस की। इसको दुनिया की समझ ना थी। कुछ खाला बताती और कुछ साइमा रहनुमाई करती, ताकि वो खाना पकाना और सही तरीके से उमूर खानादारी सीख ले। काशिफ भी कम उम्र था, जमाने की ऊंच नीच को नहीं समझता था। जो बात साइमा कहती वो मानता, लाइबा की बात पर ज्यादा तवज्जो न देता, जिस पर वो बुरा मानती। खाला ने लाइबा को अफसरदा देखकर कई बार पोते को समझाया कि बेटा, तुम अपनी दुल्हन का ख्याल रखा करो, जैसा वो कहे वैसा किया करो। लेकिन काशिफ ने दादी की बात पर कान न धरे। इस पर लाइबा ने झगड़ा भी किया, लेकिन हर बार काशिफ ने यही जवाब दिया कि ताई साइमा माँ जैसी हैं। मेरी माँ जा चुकी हैं, अब यही तुम्हारी सास हैं। इन्होंने शुरू दिन से मेरा ख्याल रखा है, अब भी रखती हैं। जैसा ये कहती हैं वैसा ही करो। वो इनकी कोई बात नहीं टाल सकता था। साइमा की सास ने देखा कि बहू पहले काशिफ पर पैसा लुटाती थी, अब इसकी बीवी पर खर्च करती है। लड़की नादान फिर भी मुंह बसोरे रखती है। इसने साइमा को कहा, जब ये लड़की तेरी चौधराहट को तस्लीम करने पर राजी नहीं, तो ख्वामख्वाह क्यों इनके घर में दखल अंदाजी करती हो। भला से खाना बनाए ना बनाए, सालन जला दे या कड़वा कर डाले, हमारा क्या है, ये जाने इनका काम। इनके मामलात में पड़ना छोड़ दो, इनको इनकी जिंदगी गुजारने दो। सास तो अजल की दुश्मन थी। साइमा ने इनकी तंबीहात पर कान न धरे। बहस की कि काशिफ मेरे लिए बेटे जैसा है और लाइबा इसी नाते से मेरी बहू है। मैं इसे नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा, वो काहिली से काम लेती है। तब क्या खाला जी इस बुढ़ापे में भूखी पड़ी रहेंगी। नई शादीशुदा लड़कियों को समझाना ही पड़ता है। वक्त पर खाना ना बनाएगी, सारा दिन मसहरी तोड़ेगी, तब कोई तो कहेगा खाला जी की वो सुनती नहीं है। अब अगर सुधरने से गुरेज किया तो बेशक मैके चली जाए। मैं काशिफ और खाला जी को तकलीफ में नहीं देख सकती। साइमा ने यूं ही बात की थी। वो कब चाहती थी कि लाइबा सचमुच मैके जाए, मगर साइमा की सास ने इस बात को खूब हवा दी और बात का बतंगड़ बना दिया। यहाँ तक कि बात लाइबा के मैके तक पहुंच गई। इन्होंने कहा, ये पराई औरत हमारी बेटी की निजी जिंदगी में इस कदर दखल क्यों देती है। एक घर में एक साथ रहने का मतलब ये तो नहीं कि हमारी बच्ची की जिंदगी अजीरन कर दे। दादी दोनों खुशो खुर्रम देखना चाहती थी। वो कभी पोते को समझाती और कभी लाइबा को कहती कि तुम महसूस ना किया करो। साइमा ने शुरू दिन से काशिफ को माँ जैसा प्यार दिया है, इसीलिए ज्यादा ख्याल रखती है और काशिफ का भी एहतरामन इसकी हर बात मानता है। काशिफ की ये आदत थी कि वो ऑफिस से आने के बाद सीधा साइमा के कमरे में चला जाता था। कुछ देर इनके पास बैठता, बातें करता, फिर खाने की ट्रे पकड़कर अपने कमरे में आ जाता। ये तरीका इसने शादी के बाद भी जारी रखा। इसके वालिद अजमल ताया के साथ वतन से बाहर थे। इस घर के तमाम काम इसी के जिम्मे थे। वो साइमा के भी काम करता था। इस मामूल पर लाइबा को एतराज रहने लगा। वो नौउम्र लड़की थी, शायद इसको भी इस घर में प्यार की जरूरत थी। जब साइमा इसको समझाती, बेटी वक्त पर शौहर के कपड़े तैयार करके रखो, इस्त्री कर दो, इसके कमरे की सफाई करो, तो इसको महसूस होता कि जो औरत इसकी सास नहीं बल्कि कुछ भी नहीं, वो क्यों उसको इसके फराइज याद दिलाती है। इसकी हैसियत इस घर में नौकरानी से ज्यादा नहीं है। साइमा की सास लाइबा के इन एहसासात से वाकिफ हो गई। वो अब इसके कान भरने लगी। बेटी, अपने शौहर को काबू में रखो, ऐसा ना हो कि साइमा इसकी दूसरी शादी करा दे और अपनी कोई करीबी रिश्तेदार लड़की ले आए, तब तुम हाथ मलती रह जाओगी। आखिर वो क्यों तुम्हारी परवाह नहीं करता, हर बात इसकी मानता है। काशिफ को तुम्हारी परवाह करनी चाहिए। इस तरह की बातें करके साइमा की सास ने लाइबा के दिल और जहन खराब कर दिया। और वो खाला जी को समझाती कि तुम बच्ची नहीं हो, क्यों अपने पोते को नहीं समझाती कि लाइबा नई दुल्हन है, इसके दिल जोई करे, मगर वो साइमा के कमरे में बैठा रहता है और वो बेचारी इंतजार कर कर के सो जाती है। खाला जी जवाब देती, बड़ी आपा, तुम बूढ़ी होकर सचमुच सनकी हो गई हो। बजाय बड़ों का अदब और एहतराम सिखाने के, मेरे पोते और इसकी दुल्हन को बदतमीज और बेअदब बनाने पर तुली हो। ऐसा भी क्या हसन, शुरू दिन से हम एक घर में रहते आए हैं। अगर आज मेरी बहू मुनव्वरा जिंदा होती तो क्या वो काशिफ को ताई के पास जाने से रोकती। तुम बजाय मस्बत सोचों के मनफी किरदार अदा कर रही हो। इन्हीं दिनों ईद आ गई। ईद से एक रोज पहले साइमा की बहन और भांजी इनसे मिलने और ईद मुबारक पेशगी कहने आई। इस वक्त काशिफ घर पर था।
साइमा ने इसे जल्दी से कुछ चीजें लाने के लिए भेजा। जब वो खाने पीने की अशिया लेकर आया तो कहा, बेटा मुझे कुछ और भी मंगवाना है। कल ईद है, मुझे खबर न थी कि आपा और शगुफ्ता आज आने वाले हैं। मैंने इनके लिए ईद का सामान नहीं लिया। ऐसा करो कि जब तक ये खाना खाती हैं इनके लिए बाजार से ही सामान ले आओ। ये कहकर फहरिस्त काशिफ के हाथ में थमा दी। इसमें शगुफ्ता के लिए चूड़ियां और कोन मेहंदी, अपनी बहन के लिए एक कढ़ाई वाली सफेद रंग की चादर की फरमाइश की थी, जिसके लिए इन्होंने दुकानदार को फोन भी कर दिया था। जब ये सामान लेकर काशिफ घर लौटा तो लाइबा दादी के कहने पर शगुफ्ता और उसकी माँ से मिलने इनके कमरे में चली गई। इस वक्त वो साइमा के कमरे में बैठी थी। लाइबा ने जल्दी जल्दी शॉपर खोला और मंगवाई हुई अशिया देखी। इसका मुंह उतर गया। वो वहां से उठकर अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। खाला और काशिफ आ गए। दर बंद पाकर दूसरे दरवाजे से कमरे में गए और रोने की वजह पूछी। वो बोली कि तुम साइमा की भांजी के लिए ईद के तोहफे क्यों लाए हो, जबकि मेरे लिए कुछ नहीं लाए। साइमा ताई ने फिलफौर भेज दिया, इसीलिए चला गया। तुमको शाम को बाजार लेकर जाऊंगा, शॉपिंग करवा दूंगा। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। साइमा की सास सही कहती हैं कि वो अपनी भांजी के लिए तुम्हें घेर रही हैं। बस जो ऑल फॉल मुंह में आया, लाइबा बकने लगी। तभी काशिफ को गुस्सा आ गया। बोला, कसम खाता हूँ शगुफ्ता मेरी बहन जैसी है, कभी भी इस बारे में सोचा तक नहीं। फिर वो मुझसे बड़ी है, न जाने ऐसी फजूल बातें तुम्हारे जहन में क्यों आती हैं। तुम इनके पास रहो, तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं मैके चली जाती हूँ। ठीक है, फिर तुम चली जाओ मैके, मैंने कब तुमको रोका है। तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर यही सही। ये कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। सहन तक आया ही था कि साइमा ने आवाज़ दी, काशिफ बेटे, इनको इनके घर तक ड्रॉप कर दो। ड्राइवर ईद की छुट्टी पर चला गया है। काशिफ ने साइमा को कुछ बताना ज़रूरी न जाना कि कहीं मेहमानों के सामने इनकी सुबकी ना हो जाए। इसने कहा, जी अम्मी। फिर अपनी गाड़ी निकालकर वो शगुफ्ता और इसकी वालदा को इनके घर पहुंचाने चला गया। काशिफ चाहता था कि इससे पहले कि लाइबा मजीद झगड़ा बढ़ा दे और साइमा के मेहमानों के कानों में ऐसी कोई बात पड़ जाए जिससे साइमा की बेइज्जती या मेहमानों को अहानत महसूस हो, वो इनको यहाँ से फौरन ले जाए। जब वो दोनों खवातीन को घर पहुंचाकर लौटा तो लाइबा घर में मौजूद नहीं थी। दादी ने बहुत रोका लेकिन वो ना रुकी और रक्षा मंगवाकर मैके चली गई। इसने साइमा को भी ऐसी बेनौकत सुनाई कि वो दंग रह गई। वही हुआ जिसका अंदेशा था। लाइबा के मैके वालों ने बात इतनी बढ़ाई कि बिलाखिर अनवर और अजमल को सऊदी अरब से लौटना पड़ा। आखिरकार साइमा की सास की मुराद बर आई। कोठी अजमल ने खरीद ली और आधी कोठी की कीमत अदा करके वो अनवर की फैमिली से अलहदा हो गए। अनवर भाई ने दूसरा घर खरीद लिया जो काफी दूर था। अब काशिफ से साइमा को भी दूर हो जाना पड़ा, जिसको बेटा समझकर चाहा और पाला। अब इस पर कोई हक बाकी न रह गया था। इस बात का ताई साइमा को बहुत दुख था, मगर ये दुख सहना ही था क्योंकि काशिफ इनका मुंह बोला बेटा था। यहाँ तो शादी के बाद सगे बेटे भी अपने हकीकी वालिदैन को छोड़ जाते हैं या फिर इनसे नजरें फेर लेते हैं। बीवी चीज ही ऐसी है, कभी सासों को जबरदस्त और बुरा ख्याल किया जाता है और कभी बहू का वार चल जाता है तो सास बेचारी मुंह तकती रह जाती है। शायद जमाने का दस्तूर यही है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।